نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سامعین، سب سے پہلے صلی اللہ وحدہ لا شریک کا تعریف ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے اذان سے پہلے ہم کو مسجد میں جمع ہونے کی توفیق دی، اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جو ہمارے لیے رہبر رہنما بن کر اس دنیا میں آئے، اور ہمارے لیے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جتنی ہو سکتی ہے کوششیں کی اور ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ پھر بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے آخرت کی فکر۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے گھر والے ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آئے دن ایسے لوگ ہمارے سامنے سے گزر گئے، ہمارے سامنے رخصت ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے دادا دادی ہو، ہمارے نانا نانی ہو، ہمارے گھر میں نوجوان بچے ہوں، لیکن ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے اندر ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کے جو حرکات تھے، وہ جو کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اس سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی، اور اس سے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو چلے گیا، یہ جو میرا بیٹا تھا، یہ جو میرے ابو تھے، یہ جو آج دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، ان کی مغفرت کیسے ہوگی، اس لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور اگر ان کے اندر کوئی غلطیاں تھی، وہ غلطیاں آج ہم اپنے زندگی سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخرت کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کتنے ہی لوگ آئے، کئی بادشاہ تھے، کئی ایسے حکمران گزرے، سب کا دعویٰ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اس دنیا کا خدا ہوں، میں آپ کا خدا کا دعویٰ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیشہ ان کی کوشش تھی، کہتے تھے کہ ہم زندہ کرتے ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی موت دی کہ دنیا ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان حکمرانوں کو یہ جو بڑا دعویٰ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کل قیامت کے دن
आखिरत के अंदर हमारा क्या हाल होगा, अल्लाह के सामने हम किस तरह से खड़े होंगे। इन सारी चीजों को जो आज हमसे रुखसत हो रहे हैं, आज हमसे दूर हो रहे हैं, इन रिश्तेदारों से हमें इबरत हासिल करें कि ये तो चले गए लेकिन इनके जो गुनाह थे, हमारे घर में ये जो बिदात करके गए, इन बिदात से आज हम रुकेंगे, अल्लाह के नबी की सही तालीम अपने घर में लाएंगे। ये हमारा मिशन होना चाहिए। एक मोमिन बंदा जब तक इस दुनिया में रहता है, जब तक उसकी जिंदगी अल्लाह ने इस दुनिया में रखी है, ये सोचकर जिंदगी गुजारता है कि अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने उनको जो जिंदगी दी है अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने जिस तरह हमको हुक्म दिया उस तरह हम इस जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारा ठिकाना असल आखिरत है। हमारा ठिकाना जो है असल आखिरत है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया एक पानी होने वाली है। इस दुनिया अल्लाह ताला ने बस इम्तिहान के तौर पर बंदे को आजमाने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है कि ये बंदा जिसको मैंने पैदा किया, दुनिया की सारी चीजों मैंने इसको अता किया, हर चीज मैंने इसको देकर, और किसी की नेमतें छीन कर भी अल्लाह ने किसी को आजमाता है और अल्लाह किसी को देकर आजमाता है। लेकिन मेरे भाइयों, सच्चा मोमिन बंदा वही होता है, अगर अल्लाह दे तो भी शुक्र अदा करता है, अगर अल्लाह छीन ले तो भी शुक्र अदा करता है। अल्लाह कितने भी नेमतों में उसको रखे, कितने भी तंगी उसको अता करे, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया दी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। असल हमारा ठिकाना जो है वो आखिरत है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। ये जो दुनिया है ये फानी है, ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। अगर असल ठिकाना है इन्ना हिय दारुल करार, अगर कोई ठिकाना, असल हमारा कोई मकसद है, असल कोई हमारा ठिकाना अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो वह है हमारी आखिरत। वही आज हमारे से खत्म है आखिरत। आज दुनिया कमाने के लिए हम इतना मसरूफ हो गए कि आखिरत का तस्वुर हमारे जहनों से खत्म हो गया। हमारी हालत है कि आज हमको बच्चों की फिक्र है, वालिदैन की फिक्र है, अपने जात को किस तरह से बढ़ाना है, अपने कारोबार को किस तरह से बढ़ाना है, अपने हम क्या है दुनिया के अंदर किस तरह से फैशन करें, किस तरह से नए नए कपड़े पहने, अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में किस तरह आगे बढ़ाएं, ये सारी फिक्र हमारे पास है। ये दुनिया की सारी फिक्र हमारे पास है। लेकिन फिक्र अगर कोई नहीं है तो वह आखिरत की फिक्र हमारे पास नहीं। हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर खत्म हो गया। अगर अल्लाह का डर वाकई मानो में अगर हमारे अंदर होता तो हम आखिरत की तैयारी करते। अगर आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आखिरत का एहसास हमने उनको नहीं दिलाया। आखिरत का एहसास दिलाकर अपने बच्चों को, अपने वालिदैन की हम तरबियत करते, अपने घर वालों की हम तरबियत करते, अपने बीवी की हम तरबियत करते कि किस तरह से अल्लाह के नबी ने हमको जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, ये बताते कि जब हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है, आखिरत की तैयारी हमारे पास नहीं है, आखिरत की जो हौलनाकियां है, आखिरत के अंदर अल्लाह के पास जो अज़ाबात है वो हमको मालूम नहीं है, उसकी वजह से आज हमने क्या है सिर्फ दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, बल्कि आखिरत की तैयारी के लिए हम तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला से डरो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और तुम ये जान लो, तुम ये सोचो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है, कल के लिए क्या तैयारी की है। ये कल क्या है? लिगद जो अल्लाह ताला ने कहा, ये कल है, आखिरत है हमारी। हमने जन्नत हो जाने के लिए क्या तैयारी की है। आज हमारी यह हालत है कि 4 वक्त 2 वक्त की हम नमाज पढ़ लेते हैं और अपने आप को पक्का मुसलमान हम कहते हैं, और बात हुकूक हम अदा कर लिए, अपने वालिदैन को क्या है थोड़ा बहुत अपने वालिदैन की खिदमत कर ली, थोड़ा बहुत अपने बच्चों की खिदमत कर ली, अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत खिदमत कर ली, बस ये समझ लेते हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में जन्नत रख दी। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। वो सहाबा इकराम के जो ओटीए सारे अमल करते, क्या है सुबह से शाम तक जंग करते और रात भर अल्लाह की इबादतों में गुजार देते, लेकिन फिर भी उनका सुबह में हालत होती कि रात भर इबादत करते, सुबह में ये सोचते कि अल्लाह ने जो मैंने रात भर इबादत की अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया। ये हालत थी सहाबा इकराम की। आज हम छोटे मोटे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं और अपने आप को पक्का मुसलमान कहकर अल्लाह की इबादत से दूर हो रहे हैं। फर्ज नमाज पढ़कर ये समझ लेते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत रख दी, सुन्नतों की हमारे पाबंदी नहीं है।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جو فرض نمازیں آپ کے ہیں وہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، یہ سنتیں ہیں، یہ نفلی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، لیکن ہم نے اس کی کیا تیاری کی، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھیں گے ہر چیز، ہر میدان میں ہم اپنے فکر میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کو بڑھانے میں، بزنس کو بڑھانے میں آج لگے ہوئے ہیں، اس کی بہت زیادہ فکر ہمارے پاس ہے۔ صبح سے شام تک کبھی بھی سکون سے کہیں بیٹھا ہو، لیکن پھر یہ سوچتا ہے کہ کبھی میں کاروبار کو کس طرح آگے بڑھاؤں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخرت کی تیاری کس طرح کروں، آخرت کی تیاری میں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میں کس طرح سے تیاری کر کے اس دنیا سے جاؤں، آخرت کے لیے کیا توشہ تیار ہم نے کیا ہے، یہ کبھی ہم بیٹھ کر نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم کیا ہے آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے سوچیں، کیونکہ جو آخرت کا مرحلہ ہے، قبر جو ہماری پہلی منزل ہے، انسان مر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من مات فقد قام قیامہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت وہیں سے شروع، قیامت وہیں سے اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے موحد بن کر کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ کے محشر کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو بڑے متقی ہوں گے، نیک ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کی حالت یہ ہوگی کہ نفسی نفسی کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایسا ماحول، آخرت کا ایسا منظر ہے کہ محشر کے اندر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کی بنسبت کوئی پیر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھے تک اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی حالت یہ، بڑے بڑے انبیاء کرام جنہوں نے توحید کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن ان انبیاء کرام کی بھی یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوں گے، ان کی یہ حالت۔ آج ہماری حالت ہے کہ ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، لیکن اللہ کے سامنے سے ہم اللہ کے مرنے کا ڈر ہی ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو لفظ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس کا ہم کو الفاظ یہ ہمارے ذہن دل سب ختم ہو گیا، ہمارے ذہنوں سے ہی ختم ہو گیا ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اس کی کس طرح سے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج محشر کے اندر جو اتنا خطرناک ماحول ہوگا، اس کے اندر ایک باپ جو کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک باپ یہ سوچ کر اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، کہیں دور سفر کرنا ہو، پیسے کیا ہے بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نئے کپڑے پہننا ہو، لیکن اپنے بچے کے لیے بچت کرنے کے لیے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے جس کے اندر باپ اپنی شفقت بتانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے قربانی دے کر اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن محشر کا اندر، محشر کے جو ماحول ہوگا اس کے اندر ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے بھاگتا رہے گا۔ یوم یفر المرء من ابیہ، اب ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس دن ایک باپ سوچے گا میرا بیٹا دیکھ لے گا تو کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ماں باپ بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، بچہ ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت ایسا ماحول ہوگا کہ نفسی نفسی ہر رگلا پریشان ہوگا، ہر رگلا کیا ہے اپنی نجات کے لیے اللہ پہ تڑپ رہا ہوگا، اللہ کے سامنے دل ملا رہا ہوگا، کوئی کسی کام کے نہیں آئے گا۔ آج جو بھی ہے، آج دنیا میں ہم اپنے بچوں کے لیے پوری زندگی وقت کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بنا رہے۔ آج ہم کیا ہے سب کچھ اپنے بچوں کے لیے بنانے کے لیے تیار ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو بھی بنائے تاکہ مرنے کے بعد وہ بچہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، ہمارے گھروں سے شرک و بدعات کو ہم دور کریں، ہمارے گھروں میں جو بزرگ عورتیں ہیں، جو ہماری نانی ہیں، جو ان کو علم نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہے، ان کو نہیں معلوم کہ بدعت کیا چیز ہے، آج اگر ہم جان رہے ہیں تو جا کر ان کو بتائیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے سامنے اگر کسی قبر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ آج ہم کو ضرورت ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے عورتوں کو صحیح دین پر لائے،
ये आज हमको जरूरत है कि हम उनको बताएं क्या क्या चीज इस्लाम में किस तरह से रहना है, किस तरह से। ये हर खुतबे में कहता हूं और ये कहता रहूंगा इंशाअल्लाह, ताकि आज जो हमारे घरों में माहौल है, आज जो हमारे घरों में बिदात है, इंशाअल्लाह ये कभी खत्म हो। वरना कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप किस तरह से खड़े होंगे ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कहूंगा अल्लाह ने तू मुझे इल्म दिया था, मैंने पहुंचाना मेरा काम था, मैंने पहुंचा दिया। सहाबा कराम की जिंदगियों को देखें, सहाबा कराम की जिंदगी, ऐसे सहाबा कराम थे, कितना उनके अंदर खौफ था। आज हम क्या है दुनिया के अंदर, आज हमारा वो मस्जिद का जिम्मेदार बनाया जाता है, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मदरसों के हम जिम्मेदार हैं। लेकिन सईद बिन आमिर का ये वाकया सुनिए, कैसा उनके पास खौफ था, कैसे वो जिम्मेदारी को अपने जिम्मेदारी का एहसास समझते थे, दुनिया को हेत समझते थे, आखिरत को अपना असल ठिकाना समझते थे। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिम्स का बादशाह, गवर्नर उनको बनाया जाता है। पहले तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर बनने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं गवर्नर नहीं बनता, मुझे नहीं मालूम कि ये मैं जिम्मेदारी संभाल सकता हूं या नहीं। आज हमारी यह हालत है कि कहीं पर हमको जिम्मेदार बनाया जाए, बनाने से पहले हम आगे बढ़कर ये कोशिश करते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार बनूं। लेकिन मेरे भाइयों, इस जिम्मेदारी को अदा करने के आप अहल हैं। अगर सही मानों पे आप जिम्मेदारी को अदा कर सकते हैं तो उस जिम्मेदारी के आप मालिक बने, वहां पर आ जाकर आप क्या है जिम्मेदारी को मांगे। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिम्स का बादशाह बनाया जाता है, गवर्नर वहां के बन जाते हैं। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब वहां के गवर्नर बनते हैं तो गवर्नर बनने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मिशन था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो बादशाह थे उमर बिन खत्ताब, तो उस वक्त वो हर शहर में जाते थे और जाकर ये देखते थे कि कितने गरीब लोग हैं, किनको अनाज मिल रहा है, किनके पास पैसे हैं नहीं है। तो ये जाकर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु देखते थे। तो एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्स को गए और वहां पर जाते हैं। वहां के गवर्नर कौन है? सईद बिन आमिर। और उस वक्त उमर बिन खत्ताब जाते हैं और जाकर वहां पर सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां के जो गरीब हैं उनकी लिस्ट लाने के लिए कहा जाता है। जब पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, जितने गरीब हैं तो ज्यादा से ज्यादा गरीबों की लिस्ट बनाई जाती है। तो उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने वो लिस्ट दी जाती है। देने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ताज्जुब हो जाते हैं, क्योंकि जिस चिट्ठी के अंदर, जिसके अंदर गरीबों की लिस्ट में जिसका नाम लिखा गया था वो सईद बिन आमिर थे। सईद बिन आमिर कौन है? ये हिम्स के गवर्नर, हिम्स का गवर्नर है। उस गवर्नर की ये हालत कि गरीबों की लिस्ट में सबसे पहला उनका नाम है, सबसे पहला उनका नाम है सईद बिन आमिर। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु 1000 दीनार का एक गुच्छा बनाते हैं, उसमें एक थैली में डालकर ले जाकर सईद बिन आमिर के घर में पहुंचाने का हुक्म देते हैं। जब सईद बिन आमिर के घर में 1000 दीनार ले जाकर दिया जाता है तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दीनार को देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। उनकी बीवी परेशान, हालांकि उनके घर में खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं, खाने के लिए कोई चीज घर में नहीं है, कई दिनों से फाका है। लेकिन सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु 1000 दीनार देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। बीवी आवाज देती है, क्या हुआ? उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया क्या? सईद बिन आमिर कहते हैं नहीं। क्या हुआ? कोई जंग पेश आई? नहीं, कोई जंग पेश नहीं आई, मेरे घर में एक बड़ा फितना आ गया। उस पैसों को देखकर सईद बिन आमिर कहते हैं कि मेरे घर में एक बड़ा फितना आ गया। उसके बाद कहते हैं कि इस दीनार को ले अपने बीवी को हुक्म देते हैं, वो इसको क्या है, ये 1000 दीनार है, इसको अलग अलग क्या है चीजों अलग अलग पैसे करके गरीबों में उसको तकसीम कर दो। ये है गवर्नर की हालत। आज हमारे पास एक जिम्मेदारी हमको दी जाती है, एक मस्जिद के हम जिम्मेदार बन जाते हैं, किसी मदरसे के हम जिम्मेदार बन जाते हैं,
उस मदरसे की तरक्की करने, उस मस्जिद को तरक्की करने के लिए जो पैसे, जो चंदा हमको मस्जिद की तरफ से मिलता है, उन पैसों को मस्जिद की तरक्की में लगाने के बजाय हम उनको पैसों को अपनी जाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरने की जरूरत है। ये जो पैसे उम्मत के हम खा रहे हैं, इसमें अल्लाह से डरने की जरूरत है। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप किस तरह से इन पैसों को लेकर खड़े होंगे? सोचें, आज हम जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सईद बिन आमिर गवर्नर बनाया जाता है। हो सकता था बड़े बड़े महल तामीर कर सकते थे, बड़े बड़े नौकरों को अपने घर में रख सकते थे, लेकिन सईद बिन आमिर ऐसी शख्सियत कि अपने आप को गरीबों की लिस्ट में तैयार रखने के लिए तैयार थे, लेकिन कभी आप अपने आप को वो गवर्नर बनने के लिए तैयार नहीं किया, क्योंकि आखिरत असल उनके पास थी। और इसी तरह आखिरत का खौफ देखें, आखिरत की तैयारी देखें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अल्लाह के नबी के साथी, अल्लाह के नबी के इतने करीब, उनका यह हालत था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काश मैं कोई दरख्त होता, काश मैं कोई दरख्त होता, लोग मुझको काट देते या कोई फल लेकर मुझसे खा देता, ऐसे ही उसका खत्म हो जाता, कोई मुझसे हिसाब और किताब नहीं होता। मैं ऐसे ही, क्या है, दुनिया में लोग मुझको एक दरख्त होता, लोग काट देते, मैं ऐसे ही दुनिया में खत्म हो जाता। ये डर था उनके अंदर, ये अल्लाह आखिरत का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह के सामने डरने से अपने कभी ये सोचा कि मैं दरख्त होता, कभी ये सोचा कि मैं परिंदा होता, लोग मुझको क्या है पकड़ लेते, कोई क्या है मुझे ज़बाह कर देता, खा लेता, ऐसे ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। और इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं, सूरह तूर पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत पर पहुंचते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। इस आयत पर पहुंचते हैं कि तेरा रब का अज़ाब वाक़े हो गया, तेरे रब का अज़ाब वाक़े हो गया। इस आयत को पढ़ना था उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दारो कितार रो रहे हैं, इतना रो रहे कि पूरी दाढ़ी भीग कर उनके दाढ़ी से आंसू टपक रहे हैं। ये आज हमारे पास नहीं है। आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए, कुरान का असर नहीं, उलमा के बयानात का असर नहीं, किसी चीज का आज हमारे पास असर नहीं। बस जुमा के अंदर हम बैठे हैं, जहां तक हम खुतबा सुन रहे हैं, बस यहां तक हमारा ईमान मजबूत, जैसे मस्जिद से बाहर गए ईमान खत्म। वैसे ही हमारी जिंदगी जैसे चल रही थी, फिर वैसे ही चल रही है। जिस तरह से हम नमाजें छोड़ रहे थे, वैसे ही हम नमाजें छोड़ रहे हैं। सिर्फ हमने जुमा को इबादत मान लिया, जुमा की नमाज अदा कर लेंगे, बस बाकी की जिंदगी नमाजें छोड़कर गुजार देंगे। ऐसे हमारी हालत है। और इसी तरह मेरे भाइयों, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास क्या है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एक कब्र के पास जाते हैं, और उमर बिन खत्ताब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये कब्र के पास जाते हैं, जाकर इतना रोते थे। कोई लोग पूछते थे कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, बल्कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तो इसलिए रोते थे कि जन्नत और जहन्नम कहते थे कि ये वो जगह है जहां पर मेरा फैसला होने वाला है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जहन्नम में जाऊंगा। ये सोचकर कब्रिस्तान को जाकर सोचकर खड़े होकर ये रोते थे। और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या खूब कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम दुनिया में जब रहते हो तो लंबी उम्मीदें ना करो, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मत करो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं ये तुमको आखिरत भुला देंगी, आखिरत से तुमको दूर कर देंगी। इसीलिए दुनिया में रहते हुए लंबी लंबी उम्मीदें मत करो। और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आज दुनिया में तुम्हारे पास अमल का वक्त है, कोई हिसाब नहीं है। आज तुम कितना भी गुनाह कर लोगे, कितने भी नेकियां कर लोगे, कोई हिसाब पूछने वाला आज नहीं है। लेकिन कल महशर के दिन, कल कयामत के दिन जब हिसाब होगा, कोई अमल का वक्त आपको नहीं मिलेगा। क्या जुमला, प्यारा जुमला अली रज़ियल्लाहु ने कहा कि आज अमल का वक्त है, कोई हिसाब नहीं है, कल हिसाब का वक्त होगा, कोई अमल नहीं है। ठीक है, ये आज हमारे पास ये जिंदगी को हमको मिशन बनाकर चलना है कि आज हमारे पास अल्लाह ने हमको वक्त दिया है, तो हम इस वक्त को गनीमत जानते हुए जिंदगी गुजारें, देख अमल करें, अपने सही मानों में अपने रिश्तेदारों का हक अदा करें, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करें, सही मानों में जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाएं। और इसी तरह मेरे भाइयों, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम जान लो कि मौत के बाद तुम्हारा किन चीजों से सामना होने वाला है। ये जान लो कि कल कयामत के दिन
किन चीजों से तुम्हारा सामना होने वाला है, कब्र के अंदर तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी चीजों का अगर तुम जान लोगे तो सही मानों में आखिरत की तैयारी तुम कर सकोगे। फिक्र आखिरत, चंद बातें कहकर क्या है आखिरत की तैयारी हम कैसे करें, एक दो तीन पॉइंट की शक्ल में बोलकर अपने खुतबे को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। सबसे पहले हम जब भी कोई काम करें तो ये सोच लें कि अल्लाह हमको देख रहा है। ये पॉइंट याद रख लें कि आज हम ये सोच लें कि अल्लाह हमको देख रहा है। ये पॉइंट को याद रख के जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत की तैयारी हमारी हो जाएगी। और इसी तरह तकवा, अपने अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें, ये दूसरी चीज, आखिरत की तैयारी हमसे हो जाएगी। और इसी तरह मौत को कसरत से याद करें, मौत को कसरत से याद करें। हमेशा ये सोचें कि हमको इस दुनिया से कभी ना कभी जाना है, तो ये सोचेंगे तो आपकी आखिरत की तैयारी करने में आपके लिए आसानी होगी। और इसी तरह मेरे भाइयों, कब्रिस्तान को जाकर कभी कभी कब्रिस्तान को जाएं, वहां जाकर ये सोचें कि मेरे जो भाई थे, मेरे साथ आज रहते थे, इस दुनिया में मेरे साथ थे, लेकिन इनका क्या हशर हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज अल्लाह ने मुझको मौका दिया है, कब्रिस्तान को जाकर जियारत करें, ना कि सजदे करें, ना कि उनके सामने सर झुकाएं, बल्कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। आज हमारी यह हालत है कि कब्रिस्तान की जियारत का मतलब हम समझते हैं कि उनके सामने जाकर हम उनसे दुआ करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह जिंदा है, ये मरे हुए लोग आपके क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, हय्य व क़य्यूम है, उस अल्लाह को छोड़कर आप मुर्दों के सामने मांग रहे हो, इतनी शर्म की बात है। आज हमारी ये हालत है कि अल्लाह को छोड़कर किस गैर के सामने हमने सर को झुकाया। मेरे भाइयों, आज समझने की जरूरत है। कब्रिस्तान को जाओ, लेकिन इस मकसद से जाओ कि मैं आखिरत की तैयारी करूंगा, ना कि कब्रिस्तान के सामने सर झुकाऊंगा। और इसी तरह एक बात यह भी है कि मरने के बाद के जो मराहिल हैं, इन मराहिल को हम याद करें। कब्र में जाना है, अल्लाह के पास खड़े होना है, इम्तिहान होने वाला है, वहां पर सवालात होने वाले हैं। कब्र में 3 सवालात हैं, फिर हशर के मैदान में 5 सवालात हैं। उन 5 सवालात को जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक आप क्या है आगे नहीं बढ़ेंगे। पुल सिरात को गुजरना है, हौज़ कौसर के पास से जाना है, ये सारी चीजें जो मराहिल हैं कल कयामत के, इसको अगर हम सामने रखेंगे तो आखिरत की तैयारी करने में हमको आसानी होगी। और इसी तरह हमेशा अपने जहन में रखें कि आखिरत की फिक्र किस तरह से हमको करना है। ये जो पॉइंट आपको बताया है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, हमेशा ये सोचें कि अल्लाह देख रहा है। हर काम करने से पहले ये सोच लें कि अल्लाह देख रहा है। अगर हमारे जिंदगी में ये सोच आ जाए, ये अल्लाह का डर हमारे पास आ जाए, मौत की याद हमारे पास आ जाए, और इसी तरह कब्रिस्तान की जियारत करते हुए हम क्या है अपने आखिरत को याद करेंगे, तो मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करने में हमको आसानी होगी। इसी बात पर मैं अपने खुतबे को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज जो भी खुतबे में बताया गया है उसको मुझे और आपको अपनी जिंदगी में सही मानों में अपनी जिंदगी में लाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। सही मानों में अल्लाह ताला हमको अल्लाह की बंदगी करने की अल्लाह हमको तौफीक दे। और जो भी आज हमारे पास बिदात है, उन बिदात से बचने की अल्लाह हमको तौफीक दे। और इसी तरह प्यारे नबी की जो सुन्नतें अल्लाह के नबी ने हमारे लिए जो कोशिशें करके गई हैं, उन सुन्नतों को अपनाने की अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।